اپوزیشن کے پاس حکومت مخالف احتجاج کا کوئی اخلاقی جواز نہیں. جس پر کرپشن کے کیس ہوں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیسے بن سکتا ہے؟ وزیراعظم کا لاہور میں پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی سے خطاب. صوبے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تعریف. پرویز الہی سے 1 to 1 ملاقات. حکومت کو عارضی ریلیف. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تحریک نہ چلانے پر متفق. فوری احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ. جیالو نے 6 ماہ بعد سڑکوں پر آنے کی تجویز دے دی. شریف برادران بھی مان گئے. ہم کہہ رہے ہیں نہ رو، وہ کہہ رہے ہیں نہ رو. فواد چودھری صاحب دن کو اکڑتے ہیں اور رات کو حزب اختلاف کے پاؤں پکڑتے ہیں. وہ وفد جو مولانا صاحب کو منانے جاتا ہے اور آگے سے جب مولانا صاحب کہتے ہیں نہ رو تو وہ فواد چودھری صاحب اپنا بیان بنا لیتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے این آر او جو ہے وہ تو نہیں ملنے والا. عمران صاحب اور فواد چودھری صاحب این آر او درخواست کرنے والے کا نام بتائیں. اے پی سی کیوں ہو رہی ہے؟ این آر او کے لیے نہیں ہو رہی. یہ پہلی اے پی سی ہے جس نے اپنے مقاصد پہلے سے ہی حاصل کر لیے ہیں. این آر او یا نہ رو اے پی سی کا مقصد کیا ہے؟ وزیر اطلاعات کا طنز. دن میں تڑیاں، رات کو مولانا کے پاؤں پڑنا، یہ کیسی پالیسی ہے؟ تانے نہ دیں، اصل بات بتائیں. نون لیگ کا جوابی بار. میرے والد صاحب کے بارے میں بڑی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، پتہ نہیں کس نے ان کو گمراہ کیا ہے. اسد عمر صاحب نے جو لفظ استعمال کر دیا کہ گمراہ کر دیا، جتنی بھی وضاحتیں کرتے تھے اتنی ہی خراب کر دیتا تھا. جہاں سے بھی بات ہو اس میں لفظوں کو تول کے بولنا چاہیے. یو آئی نے تو یہ اس وقت بھی گمراہ تھے جب پاکستان بن رہا تھا. گمراہ ہو جانا یا کوئی کسی کو گمراہ کر دے یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. ہاں یار سن لو یار اور ٹھنڈے ہو جاؤ. اب مولانا ٹھنڈے ہو جاؤ بھائی جان ٹھنڈے. وزیر خزانہ کی طرف سے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں. قومی اسمبلی میں گمراہ کا شور. اسد عمر کے مولانا فضل الرحمان سے متعلق ریمارکس پر حزب اختلاف سیکپا. ایوان سے واک آؤٹ. خورشید شاہ بھی وزیر خزانہ پر برہم. شاہ محمود قریشی کی معذرت. مہنگائی کا نیا بم چلانے کی تیاریاں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 13 روپے تک اضافے کا امکان. پیٹرول 9 روپے 10 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز. حتمی فیصلہ آج ہوگا. پانچ سالہ نجکاری پلان کی منظوری. پہلے مرحلے میں 15 سے 20 سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن. پی آئی اے اور سٹیل ملز پر فیصلہ مؤخر. اہم شخصیات کے خلاف کرپشن الزامات. نیب کی تحقیقات تیز. 2 سابق وزیر اعظم، سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی نیب کے ریڈار پر. عاظم سواتی نے گھروں پر حملہ کرایا. خواتین کے بال نوچے، بچوں پر بھی تشدد کیا. وفاقی وزیر کے مخالفین میدان میں آ گئے. استعفے کے لیے 3 روز کی ڈیڈ لائن. دھرنے کی دھمکی. گرفتار افراد کے بھائی کی پریس کانفرنس. اس طرح سے آئی جی فیڈرل منسٹر جو ہے اس کا فون اٹینڈ نہ کریں. بیوروکریٹس کے ذریعے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر الیکشن نہیں کرواتے. پرائم منسٹرز کے اپنے ایگزیکٹو اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات استعمال کریں گے. جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اس پہ عمل درآمد کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی جی وفاقی وزراء کا فون نہ سنے. وزیر اعظم کسی بھی افسر کو عہدے سے ہٹانے کے مجاز. ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرنے میں حق بجانب ہیں. بیوروکریٹس نے ہی حکومت چلانی ہے تو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں تھی. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس. ڈیم کے بعد آبادی کنٹرول کرنا سب سے اہم. کمیٹی سفارشات پبلک کرنے اور 10 دن میں سی سی آئی اجلاس بلانے کا حکم.
لانگ مارچ کے لیے تیار ہو، حکام آج ہی لاؤڈ اسپیکر اٹھا کر نکلے، آگاہی مہم چلائیں۔ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارک۔ صوبے 13 نومبر سے پہلے پانی کی یکساں قیمت مقرر کریں، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ سندھ میں مفت پانی نکال کر فروخت کیا جا رہا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو قوم گھڑے کا پانی پیا کرے گی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ واٹر کمپنیز کے مالکان کی طلبی۔ گجر خان کے علاقہ جاتلی کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس محمود اختر جاں بحق، بھتیجی زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوجرانوالا میں نون لیگی کونسلر 2 بیٹوں سمیت قتل، ورثاء کا لاشیں جی ٹی روڈ پر رکھ کر 9 گھنٹے احتجاج، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، سی پی او سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر۔ بجے ہوں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بربریت جاری، بھارتی فورسز کی ضلع پلوامہ میں فائرنگ، 2 نوجوان شہید، سرچ آپریشن کی آڑ میں تلاشی، ایک گھر کو آگ لگا دی۔ مودی کے دیس میں عدالتوں کو دھمکیاں، ہندو انتہا پسند بے لگام، کورٹ اجازت دے یا نہ دے، بابری مسجد کی جگہ مندر ضرور بنے گا، سادھوی پر آچی کی بڑھکیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس حکومت مخالف احتجاج کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، جس پر کرپشن کے کیسز ہوں وہ کیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے پنجاب کے وزراء کو خبردار کر دیا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ عمران خان نے پرویز الہی کو 1-on-1 ملاقات میں اہم ٹاسک سونپ دیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مختصر دورہ لاہور، گورنر ہاؤس پہنچنے پر چودھری سرور نے استقبال کیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے 100 روزہ پلان پر عمل درآمد اور ہاؤسنگ منصوبے پر پیش رفت پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کے اراکین، پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزراء سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس حکومت مخالف احتجاج کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، جس پر کرپشن کے کیسز ہوں وہ کیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بڑے بڑے مافیا سے جنگ ہے، وزراء ہر فیصلہ میرٹ پر کرے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب محمود الرشید نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم نے صوبائی وزراء کو خبردار کیا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ صرف منسٹر بنا کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ کی پرفارمنس کو دیکھیں گے، جج کریں گے، اور جو منسٹر اس پرفارمنس کے اندر ان کی پور پرفارمنس ہوگی وہ گھروں کو جائیں گے اور نئے لوگوں کا موقع دیں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے موقع پر جہانگیر ترین بھی متحرک نظر آئے اور ایک عرصہ خاموشی کے بعد دوبارہ حکومتی ایوانوں میں شانہ بشانہ رہے۔ حکومتی حکمت عملی آپ نے دیکھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کے خلاف حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ فوری احتجاجی تحریک نہ چلانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، 6 ماہ تک کی مہلت دی گئی ہے، پھر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ نواز شریف نے شہباز شریف سے مشاورت کی ہے، مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس میں دونوں جماعتوں کے قائدین شرکت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے احتجاج کی سیاست فوری اپنانے سے گریز کی پالیسی اپنا لی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت کے خلاف 6 ماہ تک احتجاج نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے فوری کسی قسم کا احتجاج عوام میں اپوزیشن کا منفی تاثر چھوڑے گا۔ باہمی رابطوں میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے اگر اے پی سی بلائی تو دونوں جماعتوں کے مرکزی قائدین شریک نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ سے رخصتی کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ ہاؤس آمد ہوئی، شہباز شریف نے قائد کا استقبال کیا، ارکان اسمبلی نے نعرے بازی کی۔ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے، نون لیگ کا وفد شریک ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ بھی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر پہنچے، تینوں رہنماؤں نے سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف نے احتجاج نہ کرنے کی تجویز پر نیم رضامندی ظاہر کی ہے۔ پارلیمنٹ آمد پر شہباز شریف نے این آر او سے متعلق سوال پر کہا کہ این آر او کیا ہے۔
और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन पर बरस पड़े। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें दिन में तारे और रात में तैयारे नजर आते हैं। उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, ये लोग मईशत का फालूदा बनाकर खा गए हैं। वज़ीर ख़जाना के ऐवान से चले जाने पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई और खुशी शाह सीख पा हो गए, जिस पर फवाद चौधरी और शीरी मजारी उन पर बरस पड़े। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो खिलवाड़ हुआ उसका एक अहम हिस्सा जो है वो ये मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो है वो खुद भी रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? सारे जिम्मेदार आपकी फ्रंट रो में बैठे हैं। इन महाकलाकारों ने अपनी कलाकारियों से पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क किया। ये फालूदा कौन खा गया है? ये मुल्क के जो इकोनॉमी का फालूदा बना के ये खा गए हैं। सर, हम सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण सुनने नहीं आए, तो भाषण दिया और चले गए। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा, इस बात में हम हिस्सा नहीं लेंगे। जब भी खुर्शीद शाह साहब उठते हैं उनकी कोशिश होती है कि मईशत के ऊपर गुफ्तगू ना हो। इनका फाइनेंस मिनिस्टर तो मुल्क में ही नहीं होता था जब डिबेट हो रही होती थी, अपनी तकरीर करके गायब, और ये आप बात कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। कौमी असम्बली में उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई जब वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक गुफ्तगू में गुमराह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अल्फाज वापस लेते हुए माजरत कर ली। असद उमर के ऐवान से चले जाने पर खुर्शीद शाह खूब नाराज हुए तो शेरी मजारी पर भी सीखपा हो गए। मेरे वालिद साहब के बारे में बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी, पता नहीं किसने उनको गुमराह किया है। असद उमर साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि गुमराह कर दिया, जितनी भी वजाहतें करते थे उतनी ही खराब कर देता था। जहां से भी बात हो उसमें लफ्जों को तोल के बोलना चाहिए। यूआई ने तो ये उस वक्त भी गुमराह थे जब पाकिस्तान बन रहा था। गुमराह हो जाना या कोई किसी को गुमराह कर दे, ये कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। हाँ यार सुन लो यार, और ठंडे हो जाओ। अब मौलाना ठंडे हो जाओ भाईजान, ठंडे। वजीर खजाना की तरफ से उन अल्फाज को वापस लेता हूं। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि कोई आईजी वफाकी वज़रा का फ़ोन ही ना सुने। वज़ीर आज़म को किसी भी अफसर को ओहदे से हटाने का इख्तियार नहीं है। उनका ये भी कहना था कि अगर ब्यूरोक्रेट्स ने ही हुकूमत चलानी है तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं, वो ये इख्तियारात इस्तेमाल करने में हक बजानिब हैं और इस्तेमाल करेंगे। आज़म सवाती साहब गलत हैं या सही हैं, उनका मुकदमा गलत है या सही है, ये मसला नहीं। शहरियार आफरीदी साहब, उन्होंने भी एक पूरी कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनको भेजी। सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद में स्कूलों और कॉलेजेस में आइस जो एक ड्रग है वो फ़रोख्त हो रही है। थानों में रिश्वत की शिकायत है। किस तरह से आईजी फेडरल मिनिस्टर जो है उसका फ़ोन अटेंड ना करें और वापस फ़ोन करने की जहमत ना करें। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि आप फ़ोन ना उठाएं तो आप जो हैं वो हीरो बन जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए ही हुकूमत चलानी है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाते। प्राइम मिनिस्टर्स के अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और अपने इख्तियारात को वो इस्तेमाल करने में हक बजानिब है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और अब किस्सा एक गाय का जो थमने में नहीं आ रहा। आज़म स्वाति के बेटे के मुखालिफिन ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। वो कहते हैं वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि वफाकी वज़ीर को ओहदे से हटाकर पार्टी से भी निकाला जाए। इस्लामाबाद से देखिए इस्मा शौकत की रिपोर्ट। आज़म स्वाति के बेटे की दरख्वास्त पर गिरफ्तार अफराद के अहले खाना की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाय बगीचे में घुसने का मामला नहीं, आज़म स्वाति घर पर कब्जा करना चाहते हैं। नियाज मोहम्मद के भाई अब्दुल्ला का इल्जाम, आज़म स्वाति से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। गाय की शू जो है ना, ये एक बहाना बनाया। आज़म स्वाति हमारी भाई के घर पे कब्जा कर रहे। नियाज के भाई अब्दुल्ला ने कहा कि इनके भाई ने जो किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। मेरे भाई के बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं। मैं इमरान खान से मुतालबा करूंगा कि फौरन आज़म स्वाति जिस सीट और जिस हुदे पे बैठे हैं ना, फौरन यहाँ से ख़त्म करो और इसकी पार्टी से भी
रुकनीनत खत्म करो इनकी। अब्दुल्ला का कहना था कि मीडिया पर चलने वाली सुलह की खबरें बेबुनियाद हैं। जब हमारे खानदान के सारे लोग जेल से रहा हो जाएं, इसके बाद सुलह की बात और आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। इस मौका पर बाजोड़ से साबिक रुकने कौमी असम्बली साहबजादा हारून रशीद का कहना था कि नियाज मोहम्मद और इसके खानदान के 5 अफराद अडयाला जेल में हैं। कैमरामैन फखर मुजाहिद के साथ इसमा शोके, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। गैस और बिजली के बाद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे की तैयारी कर ली। कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है और नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। देखिए इस्लामाबाद से अलीम मलिक की रिपोर्ट। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल का बम नहीं एटम बम फटने को तैयार। कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा की जानिब से समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 10 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज है। मट्टी का तेल भी 6 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। हतमी फैसला बुध को वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। अलीम मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान मेट्रो मंसूबे में मुबैना करप्शन का मामला, चीनी कंपनी के 2 गिरफ्तार अफसरों से तफ्तीश के लिए हुकूमती टीम बीजिंग रवाना हो गई है। इस हुकूमती टीम में शहजाद अकबर, इरफान मंगी और शाहिद शामिल हैं। टीम गिरफ्तार मुल्जिमान के इतराफी बयान कलमबंद करेगी और रकम मुंतकिली पर भी बात करेगी। आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जी आमिर, मजीद क्या तफसीलात है? देखिए, जो मुल्तान मेट्रो बस में मुबैना करप्शन का मामला था, उसमें चीनी कंपनी ने जो 2.5 बिलियन जो रुपए थे वो मुंतकिल किए थे चीन में, जिस पर चीनी हुकाम ने और चीनी जो रेगुलेटरी एजेंसी है उसने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और उस चीनी कंपनी के 2 अफसरान को जब गिरफ्तार किया गया, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। अब उस कंपनी से मुतल्लिक तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पाकिस्तान में मुशीर एहतसाब हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर और उनके साथ DG नैब रावलपिंडी हैं इरफान नईम मंगी और डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब मुल्तान के शाहिद अहमद, वो रवाना हो गए हैं इस वक्त चीन में। और वो इस तमाम तर जो केस है इससे मुतालिक चीनी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे और तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ये बात सामने आई थी कि जो 2.5 बिलियन रुपए हैं जो चीन मुंतकिल किए गए थे उस पर मुबैना तौर पर वो किक बैक थी और उनका बाकायदा एतराफ़ भी किया अफसरान ने चाइना में। लिहाजा अब इस तमाम तर जो रकम है इसकी पाकिस्तान मुंतकिली और इस केस में मजीद तहकीकात और तफ्तीश के लिए चीनी हुकाम से मदद ली जाएगी। इसी मकसद के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, DG नैब रावलपिंडी हैं इरफान नईम मंगी और डिप्टी डायरेक्टर नैब मुल्तान हैं शाहिद अहमद, वो रवाना हो गए हैं और वो चीनी हुकाम से मुज़ाकरात भी करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम। बहुत शुक्रिया आमिर सईद आपका। और नैब ने अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात पर तहकीकात तेज़ कर दी। 2 साबिक वज़ीर आज़म समेत सिंध के मौजूदा वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला भी नैब के रडार में आ गए। इस्लामाबाद से देखिए आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन के इल्जामात, नैब की तहकीकात में तेजी। फहरिस्त दुनिया न्यूज़ को मौसूल। साबिक वज़राए आज़म, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शामिल। नैब फहरिस्त के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शौकत अजीज़, मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़राए आला परवेज़ खटक, सनाउल्लाह ज़हरी, असलम रईसानी और दीगर के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील समेत 3 शख्सियात के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 19, पंजाब में 20 जबकि बलोचिस्तान में 9 अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी हैं। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर देंगे आपको कराची से, जहां स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू बताया जा रहा है कि जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार डाकू ने मां बेटे से सोना, नकदी और मोबाइल फोन छीने।
लूटमार की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। एसएसपी मलिर का ऐसा बताना है। कराची का इलाका स्टील टाउन जहां हुआ पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार डाकू ने मां बेटे से सोना, नकदी और मोबाइल फोन छीने। इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शामिर से। शामिर, सीसीटीवी फुटेज ने गिरफ्तारी में मदद दी या कोई और वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, ये स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। एसएसपी मलिर हैं इरफान बहादुर, उनका कहना है कि एक मुल्जिम है जहूर अली, इसको जख्मी हालत में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम गिरफ्तार मुल्जिम के बारे में बताया जा रहा है कि इसने चंद माह कबल गुलशन हदीद में खातून और उनके बेटे से लूटमार भी की थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पे आई थी। ताहम उसके बाद ही तफ्तीश का आगाज किया गया था, मुल्जिमान की तलाश शुरू की गई थी और अब सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ही मुल्जिमान का जो है वो सुराग लगाया गया और इस मुल्जिम को जो है वो मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम इसके कब्जे से लूटा हुआ सामान, जिसमें सोना, नकदी, मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं, ये सब बरामद कर लिया गया है। जबकि मुल्जिमान से मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद से तफ्तीश भी की जा रही है, उसके दीगर साथियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। ये गिरफ्तारी मजीद गिरफ्तारी में मदद देगी। शामिर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको मकबूजा कश्मीर से बताते हैं, जहां भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। पुलवामा में मजीद 2 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय फौज ने एक घर को भी आग लगा दी। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी। काबिज फोर्सेज ने पुलवामा के इलाके तराल में आज फिर कयामत ढा दी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी के दौरान भारतीय अफवाज ने 2 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया और एक रिहायशी घर को आग भी लगा दी। उधर शोपिया में रोज के सर्च ऑपरेशन से तंग आकर लोग सड़कों पर निकल आए तो मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल्स और छर्रे बरसाए गए, जिससे एक सहाफी समेत दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के नौजवान नरेंद्र मोदी की वजह से बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए हैं। बात करते हैं इसराइली तैयारे की, जिसकी गूंज कौमी असेंबली पहुंच गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वजाहत देते हुए कहा कि इसराइली जहाज़ की पाकिस्तान आमद में कोई हकीकत नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की वजाहत तस्लीम कर ली, लेकिन मौलाना अब्दुल बासित ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। इसराइली तैयारे की इस्लामाबाद आमद का मामला कौमी असम्बली पहुँच गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को ऐवान में वजाहत देनी पड़ गई। कहते हैं कि इसराइली जहाज की पाकिस्तान आमद में कोई हकीकत नहीं। खबर निकली इसराइली जहाज की मन घड़त बेबुनियाद लग़्व खबर है। आपकी इत्तला के लिए और आपके इत्मीनान के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस मौके पर हुकूमत की वजाहत तस्लीम करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदार शख्सियत करार दिया। फॉरेन मिनिस्टर ने जो इसराइली जहाज के बारे में बात की है, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, he is a gentleman and we accept his statement। MMA के रुकन मौलाना वासे ने ऐवान में इजहार करते हुए इसराइली तैयारे से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइली तैयारे से मुतालिक तहरीक इल्तवा मंजूर की जाए। वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइली जहाज की आमद की नफी की, इसकी तहकीकात कराई जाए। हम हुकूमत के जवाब को मुस्तरद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हाउस और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो कहते हैं कि नहीं आया है, लेकिन इस पे तहकीकात कर ले, हुकूमती अरकान भी इसमें शामिल हो और अपोजिशन के लोग भी इसमें शामिल हो। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने भी मौलाना वासे के मौक़िफ़ की हिमायत की। उन्होंने कहा कि इसराइली जहाज की पाकिस्तान आमद की खबरों की तहकीकात के लिए हाउस में कमेटी बननी चाहिए। हज़रत मौलाना वासे साहब ने जो फरमाया उसमें बड़ा वजन है और उसमें बड़ी हिकमत है और मैं एग्री करता हूँ कि आप हाउस कमेटी एक तश्कील फरमा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन व्हाट आई एम सेइंग। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि ऐसा चार्टर चाहते हैं जिस पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हों। पार्लियामेंट हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर चलती है। और फ़लस्तीन ने बतौर रियासत इजराइल की तौसीक मुअत्तल कर दी। 1967 की सरहदें बहाल होने तक इजरायली रियासत को मंजूर नहीं किया जाएगा। मशरकी बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का हिस्सा था और रहेगा। फ़लस्तीन मरकज़ी काउंसिल के ऐलान में 90 की दिहाई में तय पाने वाले सिक्योरिटी और अमन मुआहदे की भी मुअत्तल कर दिया गया।
फलस्तीन का बड़ा इकदाम, इसराइल की बतौर रियासत तौसीक मुअत्तल कर दी। फलस्तीनी मरकजी काउंसिल का कहना है कि इसराइल जब तक फलस्तीन को तस्लीम नहीं करता उसे बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने तेल अवीव के साथ 1994 में तय पाने वाले मौशी मुआहदे मुअत्तल करते हुए कहा है कि वो अब इसराइल के साथ सिक्योरिटी में ताउन के पाबंद नहीं। जब तक 1967 वाली सरहदें बहाल नहीं होती इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान ओस्लो अमन मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया गया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और PLO एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज इन फैसलों की मंजूरी देंगे। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.